صدیوں پہلے ملک خراسان پر بخت شاہ نامی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خراسان، جو آج کے افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقوں پر پھیلا ایک تاریخی خطہ تھا، اپنی خوشحالی اور تہذیب کے لیے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ بخت شاہ کی سلطنت وسیع، خزانے مالا مال اور فوج ناقابل شکست تھی، لیکن بادشاہ کی اصل پہچان اس کی دولت یا فوج نہیں بلکہ اس کا انصاف تھا۔ بخت شاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے دل میں رعایا کے لیے محبت اور خدا کا خوف بستا تھا۔ دنیا کی ہر نعمت ہوتے ہوئے بھی وہ ایک سادہ زندگی گزارتا۔ اس کے دربار کے دروازے کسی غریب یا مظلوم کے لیے کبھی بند نہ ہوتے۔ وہ گھنٹوں لوگوں کی فریادیں سنتا اور یقین دہانی کرتا کہ اس کی سلطنت میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ لوگ اسے صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک شفیق باپ کی طرح مانتے تھے جو اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں سایہ بھی ہوتا ہے۔ بخت شاہ کے دربار میں دلاور خان نامی ایک وزیر تھا جو اپنی ذہانت اور قابلیت میں تو بے مثال تھا، اور بادشاہ بھی اس پر بہت بھروسہ کرتا تھا، مگر اس کی قابلیت پر اس کا غرور حاوی تھا۔ وہ ایک امیر اور اونچے خاندان سے تھا، اور یہی خاندانی گھمنڈ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہتا۔ وہ عام لوگوں، خاص کر غریبوں کو حقارت سے دیکھتا، اور اس کی گفتگو میں سختی اور لہجے میں تکبر صاف جھلکتا تھا۔ بادشاہ اس کی اس عادت سے واقف تو تھا، مگر اس کی قابلیت کی وجہ سے اس سے درگزر کرتا تھا۔ اس کہانی کا تیسرا کردار بادشاہ کا ایک ذاتی ملازم تھا۔ وہ بھی اپنے مرتبے کے گھمنڈ میں رہتا تھا۔ چونکہ وہ ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتا، وہ خود کو دربار کے باقی سب لوگوں سے افضل سمجھتا اور ہر کسی سے بدتمیزی سے بات کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ ایک طرف بادشاہ کی عاجزی تھی اور دوسری طرف اس کے سب سے قریبی دو لوگوں کا تکبر۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں تقدیر ایک ایسا طوفان لانے والی تھی جو نہ صرف ان تینوں کی راہیں جدا کر دے گا بلکہ ان کے کردار کا اصلی چہرہ بھی سب کے سامنے لے آئے گا۔ ایک دن بادشاہ بخت شاہ اپنے مغرور وزیر دلاور خان اور اسی ملازم کے ساتھ ایک اہم سفر پر نکلا۔ تینوں بہترین گھوڑوں پر سوار اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ ایک وسیع صحرا سے گزر رہے تھے جہاں دور دور تک ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سفر سکون سے کٹ رہا تھا کہ اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سورج سیاہ بادلوں میں چھپ گیا اور دن میں رات کا گمان ہونے لگا۔ ٹھنڈی ہوائیں خوفناک آندھی میں بدل گئیں اور ریت کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ کچھ بھی دیکھنا ناممکن ہو گیا۔ گھوڑے بدکے اور ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ اس شدید طوفان نے تینوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں کسی انجان سمت بھاگ نکلا۔ کئی گھنٹوں بعد جب طوفان تھما تو ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ بادشاہ، وزیر اور ملازم تینوں ایک دوسرے سے میلوں دور صحرا میں بالکل تنہا تھے۔ وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے رہے مگر ان کی پکار ریت کے ٹیلوں میں گم ہو کر رہ گئی۔ اب ان کا مقابلہ صرف تنہائی سے نہیں بلکہ بھوک، پیاس اور بے سمتی کے خوف سے بھی تھا۔ بخت شاہ، جو ہمیشہ شان و شوکت میں رہتا تھا، آج صحرا کی بے رحمی کے سامنے بے بس تھا۔ اس کا وزیر، جو اپنی عقل پر ناز کرتا تھا، آج اس کی کوئی تدبیر کام نہ آ رہی تھی، اور اس کا ملازم، جو اپنے عہدے پر اکڑتا تھا، آج ایک عام بھٹکے ہوئے مسافر سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ شاید یہ صرف موسم کا قہر نہیں تھا بلکہ تقدیر کا ایک اشارہ تھا، ایک ایسی آزمائش جس نے ان تینوں سے ان کے عہدے، دولت اور طاقت چھین کر انہیں ان کے حقیقی نفس کے ساتھ تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اب نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ وزیر، نہ ملازم، صرف تین انسان تھے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، اور اسی عالم میں ان کی قسمت انہیں ایک ایسی جگہ لے جانے والی تھی جہاں ایک اندھا فقیر ان کا منتظر تھا۔ طوفان تھمنے کے بعد جب ہر کوئی اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہا تھا، سب سے پہلے بادشاہ کے ملازم کو کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ صحرا کی تنہائی میں وہ جھونپڑی امید کی کرن جیسی تھی۔ وہ تھکا ہارا اور پیاسا تھا اور اس کا مزاج چڑچڑا ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے جھونپڑی کے پاس پہنچا جہاں ایک نابینا بزرگ اطمینان سے بیٹھے تھے۔ وہ ایک اندھے فقیر تھے۔ ملازم گھوڑے سے اترا اور اپنی عادت کے مطابق تکبر سے فقیر سے مخاطب ہوا۔ اس نے سلام یا ادب کو ضروری نہ سمجھا۔ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، او اندھے، یہاں سے کوئی گھڑ سوار گزرا ہے؟
उसके लहजे में हाकिमाना गुरूर और फकीर के लिए शदीद हकारत थी। उसने सोचा कि ये शख्स अंधा है तो शायद बेवकूफ भी हो, उसे इज्जत देने की क्या जरूरत है। अंधे फकीर ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या नागवारी नहीं आई। उसने उसी सुकून से सर उठाया और जवाब दिया, भाई मुझे तो यहाँ से किसी के गुजरने की आहट नहीं मिली। फकीर का जवाब सादा और नरम था, मगर मुलाजिम ने उस पर तवज्जो देना भी अपनी तौहीन समझा। वो गुरूर से मुंह मोड़कर ये बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया कि इस अंधे को क्या पता होगा, और अपने साथियों की तलाश में दूसरी सिमत चला गया। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि उसकी आंखें तो देख सकती थीं, लेकिन उसके दिल पर तकब्बुर का ऐसा पर्दा पड़ा था कि वो फकीर की ज़ाहिरी हालत के पीछे छुपी बसीरत को न देख सका। ये इस कहानी का पहला इम्तिहान था जिसमें मुलाजिम बुरी तरह नाकाम हुआ। उसने साबित कर दिया कि बादशाह की कुर्बत ने उसे इंसानियत के बुनियादी उसूलों से महरूम कर दिया है। मुलाजिम के जाने के कुछ देर बाद वजीर सल्तनत दिलावर खान भटकता हुआ उसी झोंपड़ी के पास पहुंचा। वो भी थक कर चूर था और अपने बादशाह के लिए फिक्रमंद था। जब उसकी नजर झोंपड़ी पर बैठे फकीर पर पड़ी तो उसके दिल में भी उम्मीद जागी। दिलावर खान मुलाजिम की तरह बदतमीज तो नहीं था, लेकिन वो भी अपने मर्तबे के गुरूर में मुब्तला था। उसने फकीर को देखा और अपने वजीर होने के जाम में उससे मुखातिब हुआ। उसका लहजा खुरदरा नहीं था, लेकिन उसमें एक छुपी हुई बरतरी का एहसास था। उसने पूछा, ए फकीर, क्या यहाँ से कोई सवार गुजरा है? उसने फकीर को अंधा नहीं कहा, लेकिन फकीर का लफ्ज उसकी नजर में उस शख्स की हैसियत बताने के लिए काफी था। अंधे फकीर ने एक बार फिर उसी तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ से एक घोड़सवार गुजरा है जो हुलिये से किसी का मुलाजिम लगता था। वजीर ये सुनकर चौंका। उसे हैरत हुई कि इस अंधे शख्स को कैसे मालूम हुआ कि गुजरने वाला एक मुलाजिम था। उसने सोचा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक है। उसके अपने इल्म का गुरूर इतना ज्यादा था कि उसने इस बात पर ज्यादा गौर करना मुनासिब न समझा। उसकी नजर में ये अब भी एक मामूली फकीर था जो शायद तुक्के लगा रहा था। वजीर ने उससे मजीद कुछ पूछना अपनी शान के खिलाफ समझा और ये सोचकर आगे बढ़ गया कि बादशाह शायद इसी रास्ते पर गया होगा। और यूं वजीर भी इस आजमाइश में पूरा ना उतर सका, क्योंकि उसने भी इंसान को उसकी जाहिरी हालत से परखा और उसके अंदर छुपी हिकमत को देखने से कासिर रहा। अब झोंपड़ी एक बार फिर तन्हा थी। दो लोग आए और दोनों ने अपने किरदार का मुजाहरा कर दिया। अब बारी थी तीसरे और आखिरी मुसाफिर की, जिसकी आमद इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ मजीद वक्त गुजरा। सूरज ढलने को था कि बादशाह बख्तशाह थका हारा उस झोंपड़ी तक पहुंचा। वो भी अपने साथियों की जुदाई से निढाल था, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ एक बादशाह का वकार भी था। जैसे ही उसकी नजर झोंपड़ी में बैठे नाबीना बुजुर्ग पर पड़ी, वो फौरन अपने घोड़े से उतर आया। उसने अपने शाही मर्तबे को एक तरफ रखा और एक आम इंसान की तरह आजिज़ी से फकीर की तरफ बढ़ा। उसने करीब पहुंचकर सबसे पहले निहायत अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम शाह साहब। बादशाह का लहजा एहतराम और नरमी से भरा था। उसने ना फकीर को अंधा कहा, ना फकीर, बल्कि उसने उसे शाह साहब कहकर इज्जत दी, जैसे वो किसी बहुत बड़े मर्तबे वाले शख्स से मुखातिब हो। उसने अपना सवाल भी इंतहाई शाइस्तगी से पूछा, शाह साहब, क्या आपने यहाँ से किसी घोड़े के गुजरने की आवाज़ सुनी है? उसके सवाल में कोई हुक्म नहीं, बल्कि एक दरख्वास्त थी। वो एक बादशाह होते हुए भी एक आम आदमी की तरह मदद मांग रहा था। अंधे फकीर ने बादशाह का सलाम और सवाल सुना। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बादशाह सलामत। जी हाँ, यहाँ से 2 लोग गुजर चुके हैं। बादशाह ये सुनकर हैरान हुआ कि इस शख्स ने उसे पहचान कैसे लिया। उसने पूछा, वो कौन थे और किधर गए? फकीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपसे पहले आपका वजीर दिलावर खान आया था और उससे भी पहले आपका मुलाजिम यहाँ से गुजरा था। बादशाह की हैरत की कोई इंतहा न रही। उसने बेताबी से पूछा,
शाह साहब, आप तो देख नहीं सकते, फिर आपने ये कैसे जान लिया कि कौन मुलाजिम था, कौन वजीर और कौन बादशाह? आपने मुझे कैसे पहचाना? और बस यही वो लम्हा था जहां कहानी का सारा राज खुलने वाला था। बादशाह का सवाल सादा था, लेकिन उसका जवाब उसकी पूरी सल्तनत के खजानों से ज्यादा कीमती था। अब फकीर वो राज खोलने वाला था जिसने बादशाह को हमेशा के लिए बदल देना था। बादशाह बख्त शाह का सवाल फिजा में गूंज रहा था। आपने मुझे कैसे पहचाना? अंधे फकीर ने एक गहरा सांस लिया और उसके चेहरे पर सदियों की दानाई सिमट आई। उसने कहा, बादशाह सलामत, सच है कि मेरी आंखें आपका लिबास या ताज नहीं देख सकती, लेकिन मेरे कान आपके अल्फाज सुन सकते हैं और मेरा दिल आपका लहजा महसूस कर सकता है। बसीरत सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से आती है। सबसे पहले जो शख्स आया, उसने आते ही मुझे मेरी माजूरी का ताना दिया और कहा, ओ अंधे। उसके लहजे का तकब्बुर बता रहा था कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसे अपनी हैसियत पर झूठा गुरूर है और वो दूसरों को हकीर समझता है। ऐसा रवैया अक्सर उन लोगों का होता है जो अपने मालिक की कुर्बत की वजह से खुद को बड़ा समझने लगते हैं। मैं समझ गया कि ये आपका कोई मुलाजिम है। बादशाह खामोशी से सुनता रहा। फकीर के अल्फाज तीर बनकर उसके दिल में लग रहे थे। फकीर ने अपनी बात जारी रखी। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया। उसका लहजा पहले की तरह खुरदरा तो नहीं था, मगर उसमें भी बर्तरी का एहसास था। उसने मुझे मेरी गुर्बत की याद दिलाते हुए कहा, ए फकीर। उसकी आवाज का घमंड बता रहा था कि ये कोई ओहदेदार शख्स है जो खुद को अक्ले कुल समझता है। ऐसा तकब्बुर अक्सर वजीरों में पाया जाता है जो अपनी जहानत को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं जान गया कि ये आपका वजीर है। बादशाह का सर शर्म से झुक गया। उसे अपने सबसे करीबी लोगों की हकीकत एक अंधे फकीर की जुबानी सुनकर शदीद झटका लगा। आखिर में फकीर बादशाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। और फिर आप तशरीफ लाए बादशाह सलामत। आपने न मेरी माजूरी का जिक्र किया न मेरी गुर्बत का। आपने आते ही सलाम किया और मुझे शाह साहब कहकर इज्जत बख्शी। आपके लहजे में आजजी और एहतराम था जो सिर्फ उन दिलों में होता है जो खुदा से डरते हैं। आपकी आजजी ने ही बता दिया कि आप ही इस मुल्क के बादशाह हैं, क्योंकि असली बादशाह वो नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वो है जो अपनी राया के हर फर्द की इज्जत करना जानता है। आपके अल्फाज ने आपकी पहचान करा दी। ये कहकर फकीर खामोश हो गया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उसकी पूरी बात ही एक सवाल बनकर बादशाह के सामने खड़ी थी। उसका असल सवाल ये था, ए बादशाह, तू अपनी राया को किस नज़र से देखता है? क्या तू उन्हें उनके मर्तबे से पहचानता है या उनकी इंसानियत से? यही वो सवाल था जिसने बादशाह को जड़ों से हिला कर रख दिया। फकीर ने बादशाह को एक आईना दिखा दिया था जिसमें उसे न सिर्फ अपनी बल्कि अपने पूरे दरबार और निज़ाम की असलियत नजर आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि वो जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही इखलाकी तौर पर सबसे ज्यादा कंगाल थे। इस अंधे फकीर की बसीरत ने बादशाह की आंखें खोल दी थीं। उसे समझ आ गया कि हकीकी अंधापन आंखों की बीनाई खो देना नहीं, बल्कि दिल की बसीरत का मर जाना है। अंधे फकीर की बातों ने बादशाह बख्त शाह के दिल की दुनिया बदल दी थी। वो कुछ देर सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। इस एक मुलाकात ने उसे वो कुछ सिखा दिया था जो बड़ी बड़ी किताबें न सिखा सकीं। उसने फकीर का शुक्रिया अदा किया और इनाम की पेशकश की, लेकिन फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आपकी इज्जत अफजाई ही मेरा इनाम है। बस दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा इंसाफ और आजिज़ी के रास्ते पर कायम रखे। बादशाह भारी दिल मगर रोशन दिमाग के साथ महल वापस पहुंचा। अगले ही दिन उसने एक भरे दरबार का ऐलान किया। जब सब जमा हो गए तो बादशाह ने सहरा में पेश आने वाला पूरा वाकया सुनाया। उसने बताया कि किस तरह उसके मुलाजिम और वजीर ने उस नाबीना बुजुर्ग से बात की और किस तरह उस बुजुर्ग ने सिर्फ उनके लहजों से उनकी पूरी शख्सियत को परख लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर दिलावर खान का चेहरा शर्म से सुर्ख था और मुलाजिम खौफ से कांप रहा था।
बादशाह ने सबसे पहले उस मुलाजिम को बुलाया और गरजदार आवाज में कहा, तूने एक बेबस शख्स की तौहीन करके इंसानियत की तौहीन की है। मेरे कुर्ब ने तुझे इतना मगरूर कर दिया कि तूने खुदा की मखलूक को हकीर समझा। बादशाह ने उसे फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया ताकि उसे एहसास हो कि आम लोगों की इज्जत नफ्स क्या होती है। फिर बादशाह अपने वजीर दिलावर खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने कहा, दिलावर खान, तुम्हारा इल्म तुम्हें आजिज़ी सिखाने के बजाय तकब्बुर सिखा रहा है। जब इल्म इंसान को मगरूर बना दे तो वो जहालत से बदतर हो जाता है। बादशाह ने वजीर के कुछ इख्तियारात मुअत्तल कर दिए और उसे हुक्म दिया कि वो 1 महीना शहर के गरीबों के साथ गुजारे ताकि आजिज़ी का अमली सबक सीखे। आखिर में बादशाह ने पूरे दरबार से मुखातिब होकर एक तारीखी फरमान जारी किया, आज से मेरी सल्तनत में हर इंसान की पहचान उसका ओहदा या दौलत नहीं बल्कि उसका किरदार और अखलाक होगा। याद रखो, तकब्बुर वो गुनाह है जिसने शैतान को जन्नत से निकलवाया था। जो किसी को उसकी गुर्बत या माजूरी की वजह से हकीर समझेगा वो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मुजरिम होगा। हकीकी बसीरत दिल की पाकीज़गी में है, आंखों के देखने में नहीं। इस दिन के बाद मुल्क खुरासान की तारीख बदल गई। बादशाह का इंसाफ और भी मशहूर हो गया, लेकिन अब उसके इंसाफ में एक नई गहराई थी और ये सब एक अंधे फकीर के इस एक सवाल की बदौलत मुमकिन हुआ, जो दरअसल एक सबक था, एक ऐसी रोशनी जिसने एक अजीम बादशाह के दिल को हमेशा के लिए रोशन कर दिया।